بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ہی ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ ناظرین، چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ چائے پینے سے پہلے پانی پینا زندگی بڑھا دیتا ہے۔ کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو ماں جیسا پیار کبھی نہیں دے سکتا۔ ناظرین، اگر گھر میں روزانہ جھگڑا ہوتا ہو تو 3 اسم الہی جھگڑوں کو محبت میں بدل دیتے ہیں۔ جس گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہوں تو گھر کے تمام افراد یا کوئی ایک افراد 90 بار ہر نماز کے بعد یا اللہ یا عظیم یا ودود پڑھے، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی اور سب پیار سے رہنے لگیں گے۔ ناظرین، جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں اور سبزیاں کم کھاتے ہیں، ایسے لوگ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ پاتے۔ ناظرین، ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھ لینے سے آپ کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ سائیکالوجی کے مطابق جب آپ کسی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں تو 70% لوگ ذرہ برابر دلچسپی ظاہر نہیں کرتے۔ البتہ اگر آپ اپنی ناکامیاں دکھ کا قصہ شیئر کریں تو مکمل کہانی جاننے کے لیے بے قرار ملتے ہیں۔ ناظرین، پانی پینے کے بعد چھینکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ شام کے وقت گوشت نہ کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے اور حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے لوگ مصری اور سیاہ منقہ کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، جس گھر میں آلو بخارا اور انجیر زیادہ کھائی جائے وہاں کسی افراد کے جسم میں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ صبح کے وقت چٹپٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں، ورنہ بیماریاں تمہیں جلدی گھیر لیں گی۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانے سے بیماری کو دعوت دینا ہے۔ ناظرین، شام کو آئلی چیزیں کھانے والے لوگ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تیزابیت کو ختم کرنے والی چند چیزیں ہیں: کھیرا، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولی۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، چہرے پر مہاسے اور دانے ہیں تو روغن زیتون، روغن کدو مکس کر کے سوتے وقت منہ پر لگائیں۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کریں، یہ جلدی صاف ہو جائیں گی۔ کچی سبزیوں کے زیادہ استعمال سے بدن کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ امرود کے بیج کھانے سے چہرہ گول ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آئے گا۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ یہ فون کی نیلی لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے آپ کی نظر متاثر ہوتی ہے۔ اس کے لیے پیلی روشنی کا فلٹر نیند خراب ہونے سے بچاتا ہے۔
नाज़रीन, ज़्यादा टमाटर खाने से दांत मजबूत होते हैं। ज़्यादा कद्दू खाने से कभी मैदे की गर्मी का शिकार नहीं हो पाओगे। नाज़रीन, अगर हाथ जल जाए तो फ़ौरन कपड़े धोने वाला नील और टूथपेस्ट मिक्स करके लगा लें। जलन भी नहीं होगी और दाग भी नहीं पड़ेंगे। ज़ुबान का ख़राब होना दिमाग के ख़राब होने की पहली निशानी है। जो शख्स निहार मुँह पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसकी कुव्वत कम हो जाती है। मकई खाने से मोटापे में कमी हो जाती है। जो लोग अपनी बेटियों को गाली देते हैं उनका रिज़्क तंग कर दिया जाता है। नाज़रीन, खाना खाते वक्त बातें करने से घर में मनहूसियत आ जाती है। अगर मुंह में छाले बन जाएं तो नीम की लकड़ी चबाने से छाले ख़त्म हो जाते हैं। पेट की गैस को दूर करना है तो उबले चावलों में इमली खाओ, पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी। अगर बच्चे आपस में झगड़ रहे हों और आप कमरे में हों या किचन में उनकी आवाज़ें सुने तो वहाँ जाए बगैर 1, 2 या 3 ही बार सूरह कुरैश का विर्द करें तो झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, औरत के साथ उठने बैठने में 2 चीज़ों में इजाफा होता है, शहवत और जहालत में। हाथ के कड़ाके ना निकाला करें, ऐसा करने से जोड़ों के दर्द का मसला होता है। कोयले से दांतों को साफ मत करें, इससे दांतों की जड़ों में रेशा पड़ सकता है। नाज़रीन, तेज़ चमक की वजह से आंखें खराब हो जाएं तो नारियल के तेल में सुरमा मिलाकर लगाने से आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। हामिला औरतें हल्दी और दूध के पेस्ट को हर रोज़ पेट पर लगाएं। ऐसा करने से दौराने हमल पेट पर पड़ने वाले निशानात ख़त्म हो जाएंगे। जिस जगह पर फोड़ा फिंसी हो, तिल के तेल और मुर्गी के अंडे की सफ़ेदी मिलाकर इसका लेप करें। नाज़रीन, मैदे के अल्सर का ठंडा इलाज, दूध को बगैर शक्कर के सब्ज़ इलायची डालकर उबाल लो और फ्रीज़र में ठंडा कर लें। इतना ठंडा कर लें कि बर्फ़ बनने वाला हो। रोज़ाना 1 गिलास पी लें। मैदे की तेज़ाबियत और अल्सर और मैदे की जलन दूर हो जाएगी। नाज़रीन, लौंग जिस्म के जरासीम से बचाता है। लहसुन ज़ख्मों को मवाद को बाहर निकालता है। काली मिर्च निज़ाम हाजमा को दुरुस्त करती है। लाल मिर्च दिल के दौरे से बचाती है। दालचीनी ब्लड प्रेशर को कम करती है। वॉशरूम से उठने से कबल खांस लिया करो, तुम्हारे पेट में कभी गैस नहीं भरेगी और ना ही कब्ज़ होगी। नाज़रीन, रात को सोते वक्त तंग पजामा या तंग कपड़े पहनने से गैस और कब्ज़ का मसला हो जाता है। गोश्त कम खाने से जिस्म का गोश्त कम होने लगता है। लेकोरिया का मसला है तो टमाटर खाया कर। निहार मुँह केला खाने से बेचैनी ख़त्म होती है। महीने में 1 बार मछली खा लेने से जवानी बरकरार रहती है। अगर रफ़ा हाजत करते वक्त 7 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाए तो आपका मैदा कमज़ोर है। नाज़रीन, रात को वज़ू करके सोने से बुरे ख्वाब नहीं आते। मछली ज़्यादा खाने से बिनाई पर बुरा असर पड़ता है। केले को फ्रिज में रखने से गुरेज करना चाहिए। केले को दूसरे फलों के साथ नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि दूसरे के साथ लगकर उन्हें खराब कर देता है। नाज़रीन, अगर खाना खाने के बाद सुस्ती महसूस होने लगे तो 2 खजूरें खा लिया करें। अदरक खाने से गुर्दे और मसाने को ताकत हासिल होती है।
बंद गोभी खाने से मोटापा कम हो जाता है। नाज़रीन, पेठा खाने से नींद अच्छी आती है। जो लोग दोपहर के वक्त कहवा पीते हैं उनका दिमाग तेज होता है। नाज़रीन, दिन में 2 वक्त रोटी खाने वाला इंसान कभी बीमार नहीं पड़ता। अगर पेट में मरोड़ उठ रहे हों तो एक चुटकी काला नमक अदरक पर लगाकर चाटने से पेट के मरोड़ ख़त्म हो जाते हैं। जिल्द को चमकाने के लिए निहार मुँह बादाम के तेल से चेहरे पर मसाज करें। खाने से कबल एक सेब खा लेने से दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। नाज़रीन, नहाने के लिए पानी में लीमू निचोड़ कर नहाएं। आपके बदन से कभी बदबू नहीं आएगी। जिस घर में सफाई का ख्याल ना रखा जाता हो, ऐसे घर में रिज़्क़ की तंगी आना शुरू हो जाती है। रोज़ाना चेरी का इस्तेमाल करने से जोड़ों और हड्डियों के दर्द में आराम मिलेगा। आलू बुखारा जिल्द की खूबसूरती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लकड़ी की कंघी इस्तेमाल करने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नाज़रीन, नहाने के फ़ौरन बाद सर पर तेल की मालिश करो। दिमाग की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। घुटनों में दर्द रहता है तो अंजीर खाएं। गर्मियों में दोपहर को कुछ देर आराम कर लेने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। चेहरे पर ज़्यादा कील मुहासे निकल आएं तो कील मुहासों पर शहद लगाकर मसाज करो। बालों के गिरने का मसला हो तो नीम के पत्तों के पानी के साथ धो लिया करें। बाल गिरना बंद हो जाएंगे। नाज़रीन, बूढ़े चेहरे को हल्दी जवान करती है। मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए काला ज़ीरा मुंह में रख लें। गर्दन पर तेल की मालिश करने से सुस्ती दूर हो जाती है। नाज़रीन, सोने से कबल नमक वाले पानी से गरारे कर लो। रात को नींद में खराटे नहीं आएंगे। सब्ज़ चाय में लहसुन डालकर पीने से बदन के हर हिस्से में ताकत आ जाएगी। खारिश वाली जगह पर प्याज का रस मलने से आराम आता है। धनिया दिल और दिमाग को ताकत पहुंचाता है। लहसुन बंद हैज़ को जारी करता है। नाज़रीन, मेथी दाने का इस्तेमाल करने से सीने की जलन और बलगम बनने की बीमारी दूर होगी। चने की दाल को पीसकर अपने चेहरे पर लेप करें, दाने नहीं निकलेंगे। पट्ठों के खंचाव और दर्द के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासरा जगह की मालिश कर लें। नाज़रीन, निहार मुँह अनार खाओ। मैदे की सोजिश दूर होगी और हमल भी जल्दी ठहर जाएगा। करेला मर्दाना ताकत में इजाफा करता है। खीरा दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है। नाज़रीन, ज़ुबान इंसानी जिस्म का वो वाहिद हिस्सा है जो चोट लगने पर फ़ौरन ठीक हो जाता है। हमेशा चावल कम खाओ, दमा की बीमारी नहीं होगी। ठंडे पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पी लो। कुछ देर तक आपके जिस्म को गर्मी महसूस नहीं होगी। मैदे में गर्मी हो जाए तो गन्ने के जूस में पुदीने का शरबत मिलाकर पी लेने से मैदा सारा दिन ठंडा रहेगा। नाज़रीन, पॉपकॉर्न खाने से बंदे की सोचने और समझने की कुव्वत में इजाफा होता है। गर्म पानी पियो, घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। आंखों में कोई चीज़ पड़ जाए
یا تھکن اور سوجن ہو تو عرق گلاب ضرور استعمال کریں۔ شلجم کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے گریز کرو ورنہ معدہ کمزور ہو جائے گا۔ عورت نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو لیمو پانی کا استعمال کریں اور روزانہ دودھ میں اسباگول کا چھلکا ڈال کر پی لیں۔ انگور گردوں میں پتھری ہونے نہیں دیتا۔ گلے کی خراش دور کرنے کے لیے الائچی اور دار چینی ملے پانی سے غرارے کر لیں۔ اگر کھانا دیر سے ہضم ہوتا ہو یا بالکل ہضم نہ ہوتا ہو تو سیاہ نمک 2 حصے، نوشادر 1 حصہ، اجوائن 3 حصے ملا کر ان کا سفوف بنا لیں اور اس سفوف کو دن میں 3 مرتبہ صبح شام اور دوپہر استعمال کریں۔ اس نسخے کے باقاعدہ استعمال سے آپ کا کھانا بالکل صحیح ہضم ہونے لگے گا۔ بلغمی کھانسی سے نجات پانے کے لیے السی کو پیس کر دگنا شہد ملائیں اور مریض کو چٹائیں، بلغمی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، بچے کے پیٹ میں اپھارا کی صورت میں تھوڑی سی سونف تھوڑے سے پانی میں ابال لیں اور پھر ٹھنڈا کر کے یہ پانی تھوڑا تھوڑا بچے کو پلا دیں۔ ناریل کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھاؤ، یادداشت تیز ہوگی۔ ناظرین، چنے کی دال میں لیمو نچوڑ کر کھا لو، ہفتے میں بدن کی چربی پگھل جائے گی۔ جس بندے کو خوراک اچھی طرح ہضم نہ ہوتی ہو اور گیس کی پرابلم ہو، اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے پہلے یا مقیت 11 بار پڑھ لے۔